اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنے علم اور نور سے مدد عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 27 سے 40 تک کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے، یعنی توجہ کر کے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے، پیروکار کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے۔ پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ سو ہمارے رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا، بے شک ہم ضرور عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ پس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ بے شک وہ ایسے ہی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ترک کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تم کو صرف تمہارے کرتوتوں کی ہی سزا دی جائے گی، ماں سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، ماں سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، برگزیدہ بندوں کے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 27 سے 40 تک کا ترجمہ پڑھا ہے، اب اس کی تفسیر ہوگی۔ نیک کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنے کے متعلق احادیث۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 27 میں فرمایا، وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے، توجہ کر کے سوال کریں گے۔ پھر سورۃ صافات آیت نمبر 28 میں سوال اور جواب کی کیفیت بتائی کہ پیروکار کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے۔ دائیں جانب کی تخصیص کی حسب ذیل وجوہ ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دائیں جانب کو بائیں جانب پر شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ تمام نیک اور مستحسن اور مبارک کام دائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، اور گھٹیا اور نامبارک کام بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں حسب ذیل احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور تمام کاموں میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا پسند تھا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھا کام دائیں جانب سے شروع کرتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مشروب کا پیالہ لایا گیا۔ آپ کی دائیں جانب لوگوں میں سب سے کم عمر ایک لڑکا تھا، اور بڑی عمر کے لوگ آپ کی بائیں جانب سے۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اپنا تبرک بڑی عمر کے لوگوں کو دے دوں؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے بچے ہوئے تبرک لینے کو میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے وہ تبرک اس لڑکے کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ویسے تو حضور ہر کام دائیں جانب سے کرتے ہیں، پر دائیں جانب وہ بچہ تھا اور بائیں جانب بڑے تھے، تو حضور نے یہ سوچا کہ پہلے بڑوں کو دیا جائے۔
पर उस बच्चे ने कहा मैं अपना तबरुक नहीं छोड़ सकता या रसूल अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बकरी का दूध धोकर लाया गया। वो बकरी हज़रत अनस बिन मालिक के घर में थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्याले में दूध पेश किया गया। आपने इसमें से कुछ दूध पिया, हत्ता कि आपने मुंह से प्याला हटा लिया। उस वक्त आपकी बाईं जानिब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे और दाएं जानिब एक अराबी यानी देहाती था। हज़रत उमर को ये खदशा हुआ कि आप अपना तबरुक इस अराबी को दे देंगे। उन्होंने जल्दी से कहा, या रसूलुल्लाह, अबू बकर आपके पास बैठे हैं, उनको अता फरमा दें। आपने अपना तबरुक उस अराबी को अता फरमा दिया जो आपकी दाएं जानिब था। फिर आपने फरमाया, दाएं जानिब से इब्तिदा करो, इसके बाद फिर दाएं जानिब से इब्तिदा करो। फरमाया दाएं जानिब से इब्तिदा करो, उसके बाद फिर बाएं जानिब होना चाहिए था, या दोबारा दाएं जानिब बाएं जानिब से इब्तिदा करो, यानी पहले दाएं को दो, दाएं साइड पे जो लोग बैठे हैं उनसे इब्तिदा करो, फिर बाएं वालों को दो। ये सही बुखारी की और सही मुस्लिम की हदीस थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जूती पहने तो दाएं जानिब से इब्तिदा करे, और जब जूती उतारे तो बाएं जानिब से इब्तिदा करे, ताकि जूती पहनने की इब्तिदा भी दाएं जानिब से हो और इंतहा भी दाएं जानिब से हो। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहले दायां पैर दाखिल करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सुन्नत से यह है कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो दायां पैर से इब्तिदा करो, यानी राइट पाँव से, और जब तुम मस्जिद से निकलो तो बाएं पैर से इब्तिदा करो। जूती पहननी पहले दाएं तरफ से, फिर बाएं तरफ वाली, उतारनी पहले बाएं वाली है, लेफ्ट वाली उतारनी। ऐसे मस्जिद में जब दाखिल होना है तो पहले सीधा पाँव रखना है, राइट, फिर लेफ्ट रखना है, और जब बाहर निकलना है तो पहले लेफ्ट पाँव बाहर रखना है। घर में भी जब दाखिल होना है तो पहले राइट पाँव रखना है। घर से जब निकलना है तो पहले लेफ्ट पाँव बाहर निकालना है। और वॉशरूम में जब दाखिल होना है तो पहले लेफ्ट पाँव रखना है, जब निकलना है तो राइट पाँव। हज़रत उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं नौखेज़ लड़का था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठा हुआ था, और मैं प्लेट में हर तरफ से लेकर खा रहा था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लड़के, बिस्मिल्लाह पढ़ो और दहाने हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। फिर मैं हमेशा इसी तरह से खाता रहा। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस थी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएं और दाएं हाथ से खाएं और दाएं जानिब से खाएं और करीब से खाएं। यानी फरमाया, लड़के बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाएं हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ, यानी दाएं हाथ से खाओ, जो करीब प्लेट में हिस्सा हो वहां से शुरू करना चाहिए। दाएं हाथ की शर्फ और फजीलत की वजह से कोई घटिया और बेतौकीर काम दाएं हाथ से ना करने के मुतालिक ये हदीस है कि हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स पानी पिए तो बर्तन में सांस ना ले, और जब बैतुल खला में जाए तो अपनी शर्मगाह को दाएं हाथ से ना छुए और ना दाएं हाथ से इस्तिंजा करे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। पानी तो बैठ कर पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है, 3 सांसों में पीना, और पानी के बीच में सांस नहीं लेना जी। और दाएं हाथ से शर्मगाहों को नहीं छूना और ना ही इस्तिंजा वगैरह करना, वो बाएं हाथ से करना। दाएं जानिब की शर्फ और फजीलत की वजह से इंसान के नेक अमाल को वो फरिश्ता लिखता है जो उसकी दाएं जानिब होता है,
اور اس کے برے اعمال کو وہ فرشتہ لکھتا ہے جو اس کی مائیں جانب ہوتا ہے۔ تو دائیں جانب والا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے اور بائیں جانب والا فرشتہ، یہ فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، کندھوں پر نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، دائیں اور بائیں جانب رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کندھوں پر بیٹھے ہیں، تھک نہیں جائیں گے یہاں۔ کافر پیشوا اور ان کے پیروکاروں کا آخرت میں مکالمہ۔ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ سے کبھی ہوتا ہے، اس لیے کافر سرداروں کے پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم افضل اور قوی جانب سے ہمیں حکم دیتے تھے، اس لیے ہم تمہارے احکام کی پیروی کرتے تھے، اور تم نے ہم کو کفر اور شرک پر مجبور کر دیا۔ پھر کافر پیشوا اپنے پیروکاروں کو جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارے پاس ایسی کوئی قدرت اور طاقت نہ تھی کہ ہم تمہاری مرضی کے خلاف تمہارے دل و دماغ پر تصرف کر کے تمہیں کافر اور مشرک بنا دیتے، بلکہ تم خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب دینے کی خبر دی ہے، اور اس کی دی ہوئی خبر صادق اور برحق ہے، سو ہم کو یہ عذاب ضرور ہوگا۔ ان کے اس قول میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا تھا، سورۃ صاد آیت نمبر 84 سے 85 میں، فرمایا تو یہ حق ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، میں ضرور تجھ سے اور ان سب لوگوں سے دوزخ کو بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ حق بات فرماتا ہوں، اور جو بھی شیطان کا حکم مانیں گے میں ان کو دوزخ سے بھر دوں گا۔ پھر ان کے پیشواؤں نے اعتراف کیا کہ بے شک ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ اس سے پہلے تو انہوں نے پیروکاروں کے الزام کے جواب میں کہا تھا کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، اور اب یہ کہا کہ ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا، اور ان دونوں باتوں میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے زبردستی اور جبراً تم کو مشرک نہیں بنایا تھا، اور اس آیت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو صرف گمراہی کی دعوت دی تھی اور ہم تمہاری گمراہی کا سبب تھے، اور اس میں انہوں نے زبردستی کرنے اور جبر کرنے کا اعتراف نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ زبردستی تو انہوں نے ان کو کافر اور مشرک نہیں بنایا تھا، زبردستی کافر مشرک نہیں بنایا تھا، پر گمراہی کی دعوت تو دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کافر اور مشرک تو ہم نے نہیں بنایا، وہ تو تم اپنی مرضی سے ہی کافر اور مشرک تھے، پر گمراہی کی دعوت ہم نے تمہیں ضرور دی تھی، اس کا انہوں نے اعتراف کیا۔ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وعیدات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، یعنی پیشوا اور پیروکار اور تابع اور متبع دونوں عذاب میں شریک ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں دونوں کفر اور شرک میں مشترک تھے، آخرت میں عذاب میں مشترک ہوں گے۔ نیز فرمایا، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، یعنی کفر اور شرک پر جو ان کو عذاب دیا جائے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ یہ سزا ان کے ساتھ خاص ہے، ہمارا ہمیشہ سے یہی دستور ہے۔ پھر ان کا جرم بیان فرمایا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مان لو اور اس کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو وہ تکبر کرتے تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کیا، اور کہا، کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ترک کر سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے تھے، یعنی وہ دیوانے شاعر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو گزشتہ رسولوں کی تصدیق کی ہے، جس طرح گزشتہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی تھی، انہوں نے بھی اللہ کی توحید بیان کی ہے اور اس کے شریک کی نفی کی ہے۔ ان کی نبوت کا انکار کر کے اور ان کو دیوانہ شاعر کہنے کی وجہ سے تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا اور بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا آپ دیوانے شاعر ہیں، اس بات پہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اس کا عذاب ضرور چکھو گے، اور اللہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ جو اتنی بری بری گالیاں دے رہے ہیں نبی پاک کو یا خاکے بنا رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان کی نبوت کا انکار کر کے ان کو دیوانہ شاعر کہنے کی وجہ سے تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا اور بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا، اور تم کو صرف تمہارے کرتوتوں کی ہی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اور اچھے کاموں کا حکم دیا ہے اور کبھی اور برے کاموں سے روکا ہے، اور نیک کاموں پر ثواب کی بشارت دی ہے اور برے کاموں پر عذاب سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پسندیدہ بندے آخرت میں نجات پائیں گے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 41 سے 49، ان کے لیے مقرر روزی ہے، عمدہ میوے ہیں اور وہ عزت دار ہوں گے نعمتوں والی جنت میں، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر مسند نشین ہوں گے، ان پر چھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہوگا، وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظر رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 41 سے 49 تک کا ترجمہ پڑھا۔ اللہ نے زمین پر بھی مومن مردوں اور عورتوں کو حیا کا حکم دیا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، بیہودہ باتیں نہ سنیں، بیہودہ باتیں نہ کریں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور وہاں پہ بھی حوروں کی صفت اور خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھتی ہیں اور ان کے پاس نیچی نظر رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور پھر کہا کہ گویا وہ پوشیدہ انڈے ہیں، یعنی وہ مکمل پردے میں ہوں گی۔ کیسے پردے میں؟ کہ پہلے جنت خود ایک پردہ ہے، اس میں جا کے آج تک ان کو کسی نے نہیں دیکھا، صرف جنت میں وہی ہیں جو صاحب ڈیوٹی فرشتے ہیں، اور ابھی تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے جنت میں، دوزخ بھی حضور نے دیکھی تھی اور جنت بھی دیکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوا نبی پاک کے علاوہ، یا وہ فرشتے ہیں یا وہاں پہ حوریں ہیں جو وہیں کے ہیں جنت کے۔ باقی سب جتنے ابھی فوت ہو جاتے ہیں وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کا حشر جب قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی، پھر حشر قائم ہوگا، اس دن جب حساب کتاب ہوگا تب لوگ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ ابھی تک جنت میں کوئی نہیں ہے، آج تک کوئی نہیں گیا جنت میں، ٹھیک ہے؟ یہ جو مر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے گئے ہیں یا جنت میں چلے جائیں، اور جنت میں نہیں چلے گئے، وہ برزخ میں چلے گئے ہیں، عالم برزخ میں چلے گئے، وہ عالم برزخ میں ہیں ابھی۔ وہاں ان کے لیے اگر نیک ہیں تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی وہاں سے ہوائیں آئیں گی اور وہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ان کو اٹھا دیا جائے گا اور وہ
حشر میں چلے جائیں گے۔ وہاں اگر وہ ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے اور گناہوں سے بچتے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت اور نبی پاک کی شفاعت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال ابھی کوئی جنت اور دوزخ میں نہیں ہے۔ اب جن احادیثوں میں ہے کہ وہ دوزخ میں ہیں اور ان کو عذاب مل رہا ہے تو وہ فیوچر کی خبریں ہیں ساری۔ ابھی دوزخ میں صرف وہی صاحب ڈیوٹی فرشتے ہیں، انتظامیہ والے فرشتے ہیں، جنت میں بھی اور حوریں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے گویا وہ پوشیدہ انڈے ہیں، یہ حوروں کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی جیسے زردی وغیرہ انڈے کے اندر پردے میں ہوتی ہے، ایک تو وہ پردہ، پھر اوپر سے جنت کا پردہ کہ آج تک کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، بے حیا باتوں سے بےہودہ باتیں نہیں سننی چاہیے اور بےہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں دینا چاہیے۔ مومنوں کے متعلق اللہ کی بشارتیں۔ اس سے پہلے ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ آخرت میں کافروں اور متکبروں کے کیا احوال ہوں گے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخرت میں مومنین اور صالحین کے کیسے احوال ہوں گے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 41 میں بتایا ہے کہ ان کی روزی معلوم ہے۔ ان میں مختلف اقوال ہیں کہ ان کی روزی کی کون سی صفت معلوم ہے۔ بعض نے کہا روزی ملنے کا وقت معلوم ہے، ہر چند کی صبح اور شام کا تحقق نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں ہے کہ ان کو صبح اور شام روزی ملے گی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور ان کے لیے جنت میں صبح اور شام ان کی روزی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ معلوم ہے کہ جنت کا رزق خوش ذائقہ اور خوشبودار ہوگا اور دیکھنے میں بہت حسین معلوم ہوگا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنتیوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا رزق دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ان کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے رزق کی طرح وہ فانی اور ضائع ہو جانے والا ہے اور زائل ہونے والا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 42 میں فرمایا ان کے لیے میوے اور پھل ہوں گے، میووں اور پھلوں کو لوگ حصول لذت کے لیے کھاتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتے، اور فرمایا کہ ان کو وہ رزق عزت کے ساتھ دیا جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح جانوروں کے آگے چارہ ڈال دیا جاتا ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 43 سے 44 میں فرمایا جنت میں مومنوں کو کوئی کلفت اور پریشانی نہیں ہوگی، یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 45 میں فرمایا ہے ان پر چھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہوگا۔ اس آیت میں کاس کا لفظ ہے، اور کاس شیشے کے پیالے کو کہتے ہیں۔ اگر پیالے میں مشروب نہ ہو تو اس کو کاس نہیں کہتے، بلکہ اس کو کوب یا ابریق کہتے ہیں، اور جب وہ پیالہ مشروب سے بھرا ہوا ہو تو اس کو کاس کہتے ہیں۔ لیکن توسیعاً ایک دوسرے پر اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ صافات آیت نمبر 46 میں فرمایا وہ شراب سفید اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، جنت کی شراب کا رنگ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، اور یہ صرف جنت کی شراب کی خصوصیت ہے، دنیا کی شرابیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں، اسی طرح جنت کی شراب لذیذ ہوگی، اس کے برخلاف دنیا کی شرابیں بد ذائقہ اور کڑوی ہوتی ہیں۔ غول بیابان کی تحقیق۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 47 میں فرمایا نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے۔ اس آیت میں غول کا لفظ ہے، غول کا معنی ہے درد سر،
मस्ती नशा यानी जन्नत की शराब से दर्द सर और बदमस्ती नहीं होगी। इस शराब को पीने से सर में चक्कर नहीं आएंगे। नागहानी हलाक कर देने वाली चीज को भी गौल कहते हैं। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि खुमर में 4 औसाफ हैं: नशा आवर होना, सर दर्द पैदा करना, कै आवर होना और पेशाब आवर होना, और जन्नत की शराब इन 4 औसाफ से पाक होगी। खुमर किसे कहते हैं? अंगूर से बनी हुई शराब। और इसमें 4 बातें होती हैं कि एक तो नशा हो जाता है, फिर दूसरा सर में दर्द होता है, फिर उल्टियाँ आती हैं, वॉमिटिंग होती है और ज़्यादातर पेशाब आता है। जन्नत की शराब में ये बातें नहीं होंगी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्ज खुद ब खुद मुतद्दी नहीं होता और ना बदशगुनी की कोई हकीकत है और ना गौल की कोई तासीर है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इसमें है कि हुजूर ने फरमाया कोई चीज़ खुद ब खुद ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वायरस हो, वायरल इन्फेक्शन हो, खुद से फैल के लग जाए। तो हम देखते हैं तो हैं वायरस, कोरोना में तो वायरस है ना। तो हुजूर ने फरमाया खुद ब खुद आज खुद कोई चीज़ वायरस नहीं होती, यानी वो अल्लाह की हुक्म से हो जाती है। यानी छूने से अछूत की कोई बीमारी नहीं होती कि छूने से कोई बीमारी लग जाए। तो फिर हम देखते हैं कि ऐसी बीमारी हैं जो लगती हैं तो वो खुद ब खुद लगने की उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि उनमें ये ताकत, ये सलाहियत अल्लाह पैदा कर देता है। तो इस हदीस से लोग कहते हैं ये हदीस तो टकरा रही है साइंस से, तो वायरस तो होता है। तो इसमें खुद ब खुद उसमें फैलने की ताकत नहीं होती। वो सलाहियत और फैलने की ताकत उस बीमारी में अल्लाह आजमाइश के लिए पैदा कर देता है। और ऐसे फरमाया, ना बदशगुनी की कोई हकीकत है, ये अच्छा शगुन है, ये बुरा शगुन है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मनहूस भी कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना ये उल्लू मनहूस है, उल्लू मनहूस नहीं होता। तकलीफ के एतबार से कोई चीज मनहूस नहीं। तकलीफ के एतबार से आप सूअर को भी नहीं कह सकते कि गलत है। तकलीफ के एतबार से नहीं कह सकते आप उसको। तकलीफ उसकी किसने की है? अल्लाह ने। तकलीफ में अगर कोई गलती और एरर मिस्टेक है फिर तो तौबा अल्लाह का होगा ना। तकलीफ के एतबार से नहीं कह सकते। अल्लाह ने हमें मना फरमा दिया है शरीयत में कि वो खाने के एतबार से नजस है, हराम है। तो वो जब कहा जाएगा कि सूअर हराम है, नजस है, नापाक है, तो वो खाने के एतबार से, मखलूक होने के एतबार से वो नापाक या नजस नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों को कि नापाक है। मखलूक कोई नापाक नहीं है, ठीक है ना। तो उनका जो कुत्ते को हाथ लगाए नापाकी नहीं, ये बात ही नहीं हो रही। तकलीफ के एतबार से बात हो रही। तो बाद में फिर उसको खाना पीना, वो नजस और नापाकी वो खाने के हुक्म के एतबार से कर दी कि हराम कर दी गई, या इनको हाथ लगाने से नापाकी हो सकती है। उनकी तकलीफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात क्लियर है ना। सफर का महीना मनहूस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सफर का महीना मनहूस नहीं होता, कोई महीना मनहूस नहीं होता, कोई दिन मनहूस नहीं होता, कोई वक्त और कोई घड़ी मनहूस नहीं होती, कोई जानवर, कोई परिंदा मनहूस नहीं होता। ये सब बातें कहीं और से ट्रांसफर होंगी। शाम को झाड़ू देने से रिस्क में कमी नहीं हो जाती, रात को नाखून काटने से रिस्क बंद नहीं हो जाता। मतलब कितना कमजोर अकीदा है कि नाखून काटे और उसने अल्लाह की तकदीर में तब्दीली कर दी नाखूनों में, कि रिस्क बंद कर दी। जरा इस तरीके से सोचें, फिर पता लगे कि अल्लाह की कुदरत पे आपको कितना कम यकीन है कि आप झाड़ू देंगे तो वो अल्लाह का प्लान चेंज कर देगा झाड़ू देना, कि रिस्क नहीं मिलेगा। आप चारपाई के 7 चक्कर लगाएंगे तो कहते हैं जो चारपाई पे सोया होता उसकी बीमारी दूसरे को लग जाएगी। मतलब आपने 7 चक्कर लगाया और अल्लाह का प्लान ये था कि चारपाई वाला बीमार रहे, पर आपने 7 चक्कर उसके लगा के बीमारी अपने सर ले ली। ऐसा कुछ नहीं है।
ये सब मन घड़त बातें, दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जादूगर के बारे में कहते हैं ना कि उसने बंद कर दिया, जादूगर रिस्क बंद कर दे, जादूगर पहले अपना रिस्क तो खोल ले, दूसरे का रिस्क बंद करने का अगर आप उसको समझते हैं कि उसके पास सलाहियत है। अच्छा, राजिक जब आपने कहा है ना अल्लाह को कि वो राजिक है, फिर आपने कहा कि जादूगर रिस्क बंद कर देता है, तो इसका मतलब है अल्लाह को आपने सही तरीके से राजिक माना ही नहीं है। ये अल्लाह की जात और सिफात पर ईमान लाने से इंसान मुसलमान होता है ना। आपने उसको राजिक माना ही नहीं है सही तरीके से, जबान से कह दिया है, दिल आपने कह दिया, मैंने जबान से भी कहा है, दिल से भी तस्दीक की है, पर आप अमल से क्या कर रहे हैं? अमल से तो नफी कर रहे हैं। अमल से कह रहे हैं कि जादूगर रिस्क बंद कर देगा, वो कैसे कर देगा? ये सब काम अल्लाह के हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि तकसीम करने के लिए अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों को, तो वो उसके हुक्म से मखलूकात में उस रिस्क को तकसीम कर देते हैं। देने वाला अल्लाह ही है ना। अलामा यहया बिन शर्फ नोवी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, कुछ हदीसें आती हैं इसमें जिसमें मनूस का लफ्ज आएगा, पर वो उसकी तशरीह वो नहीं होती। वो किस सेंस में, बुरी सोबत की सेंस में आया है? जैसे यानी मतलब कि अगर घर में नहुसत होती है, जैसे हदीस में लफ्ज आएगा, तो वो घर में नहुसत ऐसे कि घर में क्या नहुसत है, उसके हमसाये जो इर्द गिर्द हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उस घर को कहा जा रहा है कि नहुसत है, क्योंकि उनके अमाल बुरे हैं, वो आपको बुरे अमाल की तरफ ले जाएंगे। घर खुद बाय इटसेल्फ कैसे मनहूस हो गया, उसकी क्या गलती है? तो इन हदीसों की तशरीह नहीं होती। जैसे ये अगर हम ना करते तो वो बंदा ना मरता, ये इंजेक्शन ना लगाते ना वो ना मरता, ये ऑपरेशन ना होता वो ना मरता। होता या ना होता, मौत मुबरम हकीकी है, उसने मरना था बाहर, ये तयशुदा है, ठीक है ना। हमारे जिम्मे एहतियात करना है। आपने एहतियात करके देख ली, मुकम्मल इलाज करके देख लिया, फिर भी वो फौत हो गया क्योंकि तकदीर मुबरम थी, यानी मुबरम हकीकी थी, तो बहरहाल उसने फौत होना था। मैं अगर ब्रेक मार लेता तो एक्सीडेंट ना होता। आपको एहतियात करनी चाहिए थी कि आप ब्रेक मारें, पर अगर आप ना भी मारते तो जो लिखा हुआ वही होना था। यानी मैं मुबरम हकीकी की बात कर रहा हूँ। मुबरम में और मौलक में तो आपको सारे काम करना है, और मुबरम हकीकी में भी आपने सारी मेहनत और कोशिश करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता ना ये मुबरम हकीकी है कि नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेहनत कोशिश करने के बावजूद काम ना हो रहा, इसका मतलब है ये अटल फैसला था, मुबरम हकीकी था, इसलिए तो हो गया। खैर, इस पर हम पहले भी बहुत तफसील से बातें कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। अलामा यहया बिन शर्फ नोवी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, सफर में कहते हैं शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसलिए मैंने सफर में ही शादी की, ठीक है। और इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफर में शादी की, ठीक है ना। उनकी तो काफी शादी हैं, एक शादी सफर में भी है। जमहूर उलमा ये कहते हैं कि अरब ये गुमान करते थे कि जंगलात में गौल रहते हैं, और गौल जिन्नात और शयातीन की जिन्स से होते हैं। गौल जिन्नात और शयातीन की जिन्स से होते हैं, और वो लोगों को मुख्तलिफ रंग की सूरतों में नजर आते हैं, और मुसाफिरों को रास्ते से बहका कर हलाक कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इनके इस गुमान को बातिल किया है। दूसरा, उलमा ने यह कहा है कि इस हदीस से ये मुराद है कि गौल का कोई वजूद नहीं है,
बल्कि इस हदीस का मानी ये है कि अरबों का ये गुमान बातिल है कि गौल रंग बिरंगी सूरतों में दिखाई देते हैं और लोगों को रास्ते से बहका देते हैं, लेकिन जिन्नात में जादूगर होते हैं, वो लोगों के जहनों में अपने ख्यालात डालते हैं और उनको शुबहात और तलबीस में मुब्तला कर देते हैं। इंसानों में जादूगर हों या जिन्नात में हों, अपने ख्यालात या वसवसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने ख्यालात आपके जहन में मुंतकिल कर सकते हैं जादू के जरिए से। जिन्नात और शयातीन छू कर भी अपने ख्यालात मुंतकिल कर देते हैं, वसवसा मुंतकिल कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दूसरे उलमा ने यह कहा है कि इस हदीस से मुराद ये नहीं है कि गौल का कोई वजूद नहीं है, बल्कि इस हदीस का मानी ये है कि अरबों का ये गुमान बातिल है। उन्होंने ये कहा कि ये नहीं कह रही हदीस के गौल होते नहीं हैं, होते हैं पर वो उनका इख्तियार इतना नहीं है कि वो हर किसी को रास्ते से बहका दें। ये इस बात का इनकार किया जा रहा है। तो बहरहाल ये कौन है? गौल जिन्नात और शयातीन की जिन्स से होते हैं। एक और हदीस में है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जरखेज और सरसब्ज इलाकों में सफर करो तो अपनी सवारियों को चरने दो और अपनी मंजिल खोटी ना करो, और जब तुम खुश्क और बंजर इलाकों से गुजरो तो जल्दी गुजर जाओ और अंधेरा फैलने से बचो, क्योंकि रात को जमीन लपेट दी जाती है। और जब जिन्नात तुमको परेशान करें तो जल्दी से अजान दो ताकि इनका शर दूर हो, और तुम रास्ते के वस्त में सवारी से उतरने और नमाज पढ़ने से परहेज करो, और तुम रास्ते के वस्त यानी दरमियान में सवारी से उतरने और नमाज पढ़ने से परहेज करो, यानी सड़क के दरमियान में ना शुरू हो जाए। ये बात हो रही है, ये नहीं कि आप सफर कर रहे हैं तो आपने आधा सफर किया तो ये रास्ते का वस्त हो गया तो आप नमाज नहीं पढ़नी, ये बात नहीं हो रही। मतलब रोड के सेंटर में ना खड़े हो जाओ, ये बात हो रही है। तुम रास्ते के वस्त में सवारी से उतरने और नमाज पढ़ने से परहेज करो, क्योंकि वहाँ सांप और दरिंदे होते हैं, और वहाँ कज़ाए हाजत से भी इज्तनाब करो, क्योंकि लोग उन पर लानत करते हैं। इस हदीस में ये दलील है कि गौल ब्याबा का बहरल वजूद है। गौल ब्याबान, ठीक है ना। अलामा अल मुबारक बिन मोहम्मद इब्न अल असीर जजरी ने दरअसल ये तकरीर की है। काजी अयाज बिन मूसा मालकी की शराब में लिखते हैं कि जिन किसी को गुमराह नहीं कर सकता और ना किसी की कोई सिफ्त मुगैयर कर सकता है, यानी जाया नहीं कर सकता किसी की सिफ्त, और ना ही गुमराह कर सकता। इसी तरह हजरत उमर ने फरमाया कि कोई शख्स किसी की कोई सिफ्त मुगैयर नहीं कर सकता, लेकिन जिन्नात में जादूगर होते हैं, जब वो तुमको परेशान करें तो नमाज की अजान दो। तो जब भी वसवसे ज्यादा आए तो सूरत फलक और सूरत नास तो पढ़नी चाहिए, साथ में अजान भी देनी चाहिए। अलामा मोहम्मद बिन खलीफा अबी मालकी और अलामा मोहम्मद बिन मोहम्मद अल सनूसी ने भी अलामा इब्न अल असीर और अलामा नोवी की तकरीर नकल की है, और इसके बाद मजीद लिखा है। यहाँ पर एक सवाल नज़र आ रहा है कि ये तवहमात जो हैं, सुपरस्टिशंस जो हिंदुओं से ट्रांसफ़र हुए, तो बिल्कुल ये जितने भी है ना, ये हिंदुओं से ट्रांसफ़र हुए हैं हम, कि ये झाड़ू ना दो और नाखून ना काटो और बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो सफ़र मुश्किल हो जाएगा। जो आपको कहे उस काम को ज़रूर करें जी, अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए कि ये सारे काम अल्लाह की मर्जी से होते हैं।
बेशक। ये भी एहतमाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले गौल ब्याबां होते थे और इसके बाद अल्लाह सुबहाना ने उनको अपने बंदों से रफा कर दिया और आपकी बेइज्जत की खसाइश में से है। जिस तरह आपकी बेइज्जत से पहले जिन्नात आसमानों से फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लिया करते थे और आपकी बेइज्जत के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब ये नहीं समझ में आती, कहीं पे है ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे है ख़त्म हो गया है, आप चोरी छुपे जिन्नात बातें नहीं सुन सकते। बैठ जाए। चोरी छुपे जिन्नात बातें नहीं सुन सकते, ये क्या है कि ये सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है हुजूर की बेइज्जत के बाद। तो कहीं पे आ रहा है चल रहा है, कहीं पे आ रहा है ख़त्म। क्या बैलेंस क्या है इसका? बैलेंस ये है कि पहले कसरत से जाते थे और सुनते थे, अब वो बहुत कम हो गई है तादाद, मुकम्मल ख़त्म नहीं हो गई। और पहले आसमानों को भी क्रॉस कर जाते थे, पहले आसमान से दूसरे तीसरे को भी क्रॉस कर जाते थे। अब पहले आसमान के नीचे रह सकते हैं, ये बात हो रही है, ठीक है ना। नीज इस आयत में यंज़फून का लफ्ज है और इसका मानी किसी चीज का खत्म हो जाना है। नज़्फ़ुल मा कहते हैं जब कुएं का तमाम पानी निकाल लिया जाए और इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। नज़्फ़ी फिल खुसूमा उस वक्त कहते हैं जब किसी शख्स के अपने मौक़िफ़ पर तमाम दलाइल मुस्तरद कर दिए जाएं और अब इसके पास कोई दलील न रहे। और इस आयत में ला युनज़िफून से मुराद ये है कि जन्नत की शराब पीने से मोमिनों की अकल काम करती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी और वो बहकी बातें नहीं करेंगे। तो साबित ये हुआ कि इस दुनिया में शराब पीने से अकल आर्जी तौर पे ख़त्म हो जाती है, सल्ब हो जाती है, और जन्नत में ऐसा नहीं होगा। हूरों को पोशीदा अंडों के साथ तशबीह देने की तौजीह सूरत उस-सफ़ात आयत नंबर 48 से 49 में फरमाया, और उनके पास नीची नजरें रखने वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, गोया कि वो पोशीदा अंडे हैं। कसर का मायनी है रोकना और बंद करना, और तरफ का मायनी है देखना और नजर करना। इसका मायनी यह है कि वो अपनी नजरों को रोक कर बंद रखेंगे और अपने खामदों के सिवा और किसी को नहीं देखेंगे। और इसमें ऐन का लफ्ज है, ज़जाज ने कहा है इसका मानी है बड़ी बड़ी आंखों वाली हसीन व जमील औरतें। और इसमें बैज़ का लफ्ज है और ये बैज़ा की जमा है, और मकनून का मानी है कि छुपी हुई और पोशीदा चीज़। अंडे में सफ़ेदी और जर्दी इसके छिलके के खौल में पोशीदा होती है, और जब तक वो छुपी रहे वो गर्द गुबार और बैरूनी तागीरात से महफूज रहती है। मुराद यह है कि जिस तरह अंडे की सफ़ेदी और जर्दी बैरूनी तागीरात से महफूज और मामून होती है, इसी तरह वो भी बैरूनी तागीरात से महफूज और मामून है। जिस तरह अंडे की अंदरूनी सतह सफ़ेद पर्दे में बंद होती है, इसी तरह हूरे सफ़ेद पर्दे में बंद और उनकी छुई हुई होंगी। सफ़ेद पर्दे में बंद और अनछुई होंगी। सूरत रहमान आयत नंबर 56 से 74। उनको इससे पहले किसी इंसान ने छुआ है ना जिन ने, क्योंकि कोई इंसान जन्नत में दाखिल ही नहीं है। नबी पाक ने देखी जन्नत, और वही फरिश्ते जो साहिब ड्यूटी हैं वो हैं जन्नत में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जन्नत में थे, वो इस जन्नत में थे।
वो इस जन्नत में नहीं थे। जी वो आसमानों में कोई और मकाम है, उसको भी जन्नत कहा गया, वो वहां थे। इस जन्नत में तो कोई नहीं है अभी तक, जी हिसाब किताब के बाद दाखिल होंगे, है ना? जी तो इसलिए किसी जिन और इंसान ने उनको छुआ नहीं है। अब जैसे वो कुछ कह देते हैं ना उलमा, जिन जन्नत में नहीं जाएंगे, एराफ जी में जाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे? दो मखलूकात अल्लाह ने पैदा किए हैं अपनी इबादत के लिए, इंसान और जिन, जी और इन दोनों को इख्तियार दिया और इन दोनों को आजमाइश के लिए पैदा किया। तो दोनों अगर ईमान ले आए और नेक अमाल किए तो दोनों जन्नत में जाएंगे। जी ये आराफ में क्यों जाएंगे? और इस आयत में क्या है कि उनको इससे पहले किसी इंसान ने छुआ है ना जिन ने। जिन जाएंगे तभी तो कहा जा रहा है। जी जिन अगर आराफ में जा रहे हैं, जन्नत में नहीं जा रहे, तो क्यों जन्नत का जिक्र में उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने नहीं छुआ इसको? बात समझ में आ रही है ना? तो जिन भी जन्नत में ही जाएंगे और इंसान भी जन्नत में ही जाएंगे, आराफ में नहीं जाएंगे। जी आराफ में कौन लोग जाएंगे? जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएं, वो आराफ में जाएंगे, या वो छोटे बच्चे जो नाबालिग फौत हो गए जी वो आराफ में जाएंगे और बाद में जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। बहरहाल जो भी आराफ में जाएगा वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और आराफ में कोई अजाब नहीं है, वो पुरसकून जगह है ना? जिस्मानी और रूहानी लज्जतें, इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की जिस्मानी और रूहानी लज्जतों का जिक्र फरमाया है। मेवों, फलों और शराब तहूर के खाने और पीने से इंसान को जिस्मानी लज्जतें हासिल होती हैं, और हसीन व जमील औरतों के कुर्ब से भी इंसान को जिस्मानी लज्जत हासिल होती है। और इन आयात में यह भी जिक्र फरमाया है कि जन्नत में मोमिनों की तकरीम की जाएगी और उसकी अपने दोस्तों से मुलाकात होगी, वो एक दूसरे के सामने होंगे और उन चीज़ों से रूहानी लज्जत हासिल होती है, और इन चीज़ों से रूहानी लज्जत हासिल होती है। इसी तरह हसीन चेहरों को देखने से भी इंसान खुश होता है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें आँखों को रोशन करती हैं। एक रिवायत में है, आँख की कुव्वत में इजाफा करती हैं। सब्ज़े की तरफ देखना, जारी पानी की तरफ देखना और हसीन चेहरे की तरफ देखना। इन 3 चीज़ों से आँखों की कुव्वत में इजाफा होता है। सब्ज़े की तरफ देखना, जारी पानी की तरफ देखना और हसीन चेहरे की तरफ देखना। तो अब तो फिर आप हर हसीन लड़की को देखना पसंद करेंगे। तो क्या फरमाया? मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी निगाहें नीची रखें। हाँ, तो नेक हस्तियों को, बुजुर्गों को देखें, उनके हसीन चेहरों को देखें। आपने हसीन चेहरे से सीधी लड़की समझ लिया है। अंडों का पाक और हलाल होना। मुर्गी के अंडों को खाने का मुसलमानों में बहुत रिवाज है और तमाम हलाल परिंदों के अंडे हलाल हैं। तमाम हलाल परिंदों के अंडे हलाल हैं। बाज़ लोगों को ये शुबा होता है कि अंडा दर हकीकत नर परिंदे का मादा मनविया होता है और मनी नापाक और नजस है, इसलिए अंडा हलाल नहीं होना चाहिए। इसका जवाब यह है कि अंडे के पाक होने की ये दलील है कि अहादीस में अंडे को सदका करने का जिक्र है और नजस और नापाक चीज़ का सदका नहीं किया जाता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मे के दिन गुस्ल जनाबत किया फिर वो जुम्मे की नमाज पढ़ने चला गया, गोया उसने एक ऊँट को सदका किया। और जो दूसरी साथ में गया उसने गोया गाय को सदका किया।
और जो तीसरी साथ में गया यानी घड़ी में, उसने गोया सींगों वाले मेंढे को सदका किया, और जो चौथी साथ में गया उसने गोया मुर्गी को सदका किया, और जो पांचवी साथ में गया उसने गोया अंडे को सदका किया। और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में अंडे को सदका करने का जिक्र है और सदका 5 चीज़ों का किया जाता है। और अंडे के हलाल होने की दलील ये हदीस है कि अब्दुल्ला बिन अल हारिस बिन नौफिल अल हाशमी बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खाकर कहा कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फितर मुर्ग के अंडे लेकर आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग मुहर्रम हैं यानी एहराम की हालत में हैं, तुम ये अंडे गैर मुहर्रम लोगों को खिलाओ। और 12 मुसलमानों ने इस वाक़ये की शहादत दी, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा खाया उन्होंने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया क्योंकि वो एहराम की हालत में, वो उम्रे का एहराम होगा या हज का होगा, ठीक है ना। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया साबकीन में से किसी नबी ने अल्लाह ताला से कमजोरी की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने उन्हें अंडे खाने का हुक्म दिया। हाफिज इब्ने कय्यम हम्बली ने लिखा है कि ताज़ा अंडों को बासी अंडों पर तरजीह दी जाए और मुर्गी के अंडों को दीगर परिंदों के अंडों पर तरजीह दी जाए। हाफिज इब्ने कय्यम और हाफिज सयूती ने इस हदीस को इमाम बहकी की शोअबुल ईमान के हवाले से जिक्र किया है। सूरत उस-सफ़ात आयत नंबर 50 से 61 तक का तर्जुमा। अल्लाह ताला का इरशाद है, पस वो जनती एक दूसरे की तरफ मुड़कर सवाल करेंगे। इनमें से एक कहने वाला कहेगा, बेशक दुनिया में मेरा एक साथी था जो कहता था, क्या तू जरूर कयामत की तस्दीक करने वालों में से है? क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या उस वक्त जरूर हमको बदला दिया जाएगा? वो कहेगा, क्या तुम उसको झांक कर देखने वाले हो? सो वो इसको झांक कर देखेगा तो उसको दोज़ख के दरमियान में देखेगा। सो वो इससे कहेगा कि अल्लाह की कसम करीब था कि तू मुझे हलाक कर देता, और अगर मुझ पर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोज़ख में पड़ा होता। जनती लोग फरिश्तों से कहेंगे, क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? सो इस पहली मौत के सिवा उस पहली मौत के और क्या हमको अजाब नहीं दिया जाएगा? फिर तो बेशक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। सूरत उस-सफ़ात आयत नंबर 50 से 61 तक का तर्जुमा था। मोमिन का अपने वाकिफ काफिर को दोज़ख में देखना। इससे पहली आयतों में अल्लाह ताला ने इन काफिरों का जिक्र फरमाया था जो तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला को वाहिद नहीं मानते थे और इनकार नबूवत पर इसरार करते थे। फिर इन मोमिनीन का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला को वाहिद मानते थे और उसके अहकाम पर इखलास के साथ अमल करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला उनको आखिरत में अता फरमाएगा, और जन्नत की सिफात और उसके खवाइस का जिक्र फरमाया। और अब उसके बाद जन्नत में अहले जन्नत की एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का जिक्र फरमा रहा है। सूरत सफ़ात आयत नंबर 50 में है, बस वो जनती एक दूसरे की तरफ मुड़ कर सवाल करेंगे। इसका अतफ इन आयतों पर है
اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر مسند نشین ہوں گے اور ان پر چھلکتی ہوئی شراب کا جام گردش کر رہا ہوگا. اس وقت وہ شراب طہور پیتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے. اور پھر سورہ صفات آیت نمبر 51 سے 57 میں ان کی ایک دوسرے سے باتوں کا ذکر ہے. ایک جنتی دوسرے سے کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر میرے ایمان لانے کی مذمت کرتا تھا اور حیرت اور تعجب سے کہتا تھا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اس وقت ہم کو ضرور بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی ہم نے زندگی میں جو اچھے یا برے کام کیے ہیں ان کا حساب لیا جائے گا اور اچھے کاموں کے عوض ثواب دیا جائے گا اور برے کاموں کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا. پھر وہ جنتی شخص اس دوسرے جنتی شخص سے کہے گا کیا تم اس قیامت کے منکر کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ بعض مفسرین نے کہا وہ جنت کے ایک کنارے میں جا کر وہاں سے دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ منکر قیامت دوزخ کے درمیان پڑا ہوگا. پھر وہ جنتی شخص اس منکر قیامت کو زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور ملامت کرتے ہوئے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا اور اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں دوزخ میں پڑا ہوتا. دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے. آپ کی اچھی صحبت تو آپ اچھے ہو جائیں گے، بری صحبت تو برے ہو جائیں گے. اچھے دوست آپ ان کے عقیدے پر چلے جاتے ہیں. اب وہ اس کا دوست تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو عیاشی کرنی ہے اس دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں تو وہ کہتا تھا نہیں میرا تو یقین ہے. اب وہ جنت میں پہنچ چکا ہے، فیوچر کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں بیٹھ کے شراب طہور پی رہا ہے اور اپنے دوست سے بات کر رہا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا، اس کو یاد ہے. ابھی جو لوگ پوچھتے ہیں نا جنت میں ہمیں دنیا کی باتیں یاد ہوں گی کہ نہیں، تو اس کو یہ دنیا کی بات یاد ہے، مطلب جنت میں دنیا کی باتیں یاد ہوں گی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے کہا کرتا تھا. تو پھر وہ دوسرا دوست اس کو کہے گا کہ اپنے اس پہلے والے دوست کو دیکھ جو منکر تھا، تو جب وہ دیکھے گا تو وہ دوزخ میں ہوگا. اب وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ تو مجھے بہکا دیتا. مطلب اس کو یہ ڈر تھا. وہ بات یاد آئے گی کہ اس کے دلائل، جب وہ دلائل دیا کرتا تھا دنیا میں تو کچھ ایسے دلائل دے دیتا جو دماغ پر اور دل پر اثر کرتے تھے کہ شاید واقعی نہیں ہے، پر اللہ نے مجھے بچا لیا، محفوظ کر لیا کہ قیامت قائم ہونی ہے اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اور آج بھی لوگ عقلی دلائل پیش کر کے قرآن یا حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے دوستوں سے دور رہنا چاہیے جو گناہوں کی طرف لے کے جائیں، جو بد عقیدگی کی طرف لے کے جائیں. اس مومن اور کافر کا ماجرا امام ابن جریر کی روایت سے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند سے فرات بن سلبہ البرہانی سے ان آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں. دو آدمی ایک دوسرے کے شریک تھے، ان کے پاس 8,000 دینار جمع ہو گئے. انہوں نے آپس میں ان کو تقسیم کر لیا، پھر وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. پھر ان میں سے ایک نے 1,000 دینار کا ایک محل خرید لیا اور دوسرے کو بلا کر اپنا محل دکھایا. دوسرے نے کہا واقعی یہ بہت خوبصورت محل ہے. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میرے اس صاحب نے 1,000 دینار کا یہ محل خرید لیا ہے اور میں اپنے حصے کے 1,000 دینار کے عوض تجھ سے جنت میں ایک محل خریدتا ہوں. پھر اس نے 1,000 دینار صدقہ کر دیے. پھر کچھ عرصے بعد پہلے شخص نے 1,000 دینار کے عوض ایک عورت سے شادی کر لی اور دوسرے شخص کو اپنی بیوی دکھائی. اس نے کہا واقعی یہ بہت خوبصورت عورت ہے. وہ وہاں سے چلا گیا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میرے اس صاحب نے 1,000 دینار میں ایک حسین عورت سے شادی کی ہے. میں تجھ سے اپنے 1,000 کے بدلے میں جنت کی بڑی آنکھوں والی حوروں کا سوال کرتا ہوں. اور اس نے 1,000 دینار صدقہ کر دیے. پھر کچھ دنوں بعد اس سے پہلے شخص نے 2,000 میں 2 باغ خرید لیے اور اس دوسرے شخص کو
अपने दोनों बाग दिखाकर कहा, मैंने 2000 दिनार में ये 2 बाग खरीदे हैं। उसने कहा, ये वाकई बहुत खूबसूरत बाग हैं। और उसने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत में 2 बागों का सवाल करता हूँ। फिर उसने बकिया 2000 दिनार सदका कर दिए। फिर मौत के फरिश्ते ने इन दोनों की रूह को कब्ज कर लिया और इस दूसरे शख्स को जन्नत के महल में ले जाकर एक महल दिखाया। फिर एक हसीन और जमील हूर दिखाई और इसको जन्नत में 2 बाग दिखाए और इसको बताया, ये महल, ये हूर और ये दोनों बाग तुम्हारे हैं। फिर इसको याद आया कि दुनिया में इसका एक साथी और शरीक था जिसने अपने हिस्से के 4000 दिनार दुनिया में ही खर्च कर लिए थे और आखिरत के लिए कोई नेकी नहीं की थी, और वो आखिरत में अमाल की जजा और सजा का इनकार करता था। वो फरिश्ता से उसके मुतालिक पूछेगा तो फरिश्ता उसको दिखाएगा कि वो दोज़ख में जल रहा होगा। फिर वो जन्नती इस दोज़खी को मलामत करेगा और कहेगा, अल्लाह की कसम, करीब था कि तू मुझे भी हलाक कर देता। अगर मुझ पर मेरे रब का एहसान ना होता तो आज मैं भी दोज़ख में होता। तो ये तो दोज़ख में जा चुके हैं और वो जन्नत में जा चुका है। तो ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं, ये वाक़यात अभी हुए नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह के मुताबिक हो चुके हैं। अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, अल्लाह तो टाइमलाइन से पाक है ना पास्ट ना फ्यूचर ना प्रेजेंट। तो वो तो फ्यूचर को देख कर बता रहा है कि ये होगा, या अल्लाह फिर नबी पाक को बता रहा है और नबी पाक हमें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह फ्यूचर को देख कर वो खबर बयान कर रहा है, ये वाक़यात हुए नहीं है। और फिर फरिश्ता दिखाएगा, वो तो तब हो गई जन्नत में, तो फ्यूचर का वाक़या है। और दूसरी बात कि जब वो आलम बरज़ख में होगा और तब उसको दिखाया जाएगा, तो तब जन्नत के बागात कैसे दिखा दिए जाएंगे, तब उसको जन्नत की हूर कैसे दिखा दी जाएगी। तो वो कब्र में से दिखा दिया जाएगा, वो मंजर उसको जन्नत में जाकर में दिखाया जाएगा। जन्नत में सबसे पहले नबी पाक दाखिल होंगे, उनसे पहले कोई दाखिल नहीं हो सकता। अब इस पर कोई एतराज़ करेगा कि हज़रत बिलाल तो ऊँट, यानी वो जो भी सवारी होगी, ऊँट का लफ्ज़ है, तो वो उस ऊँट की मुहार पकड़ कर चल रहे होंगे तो पहला कदम उनका जन्नत में लग जाएगा। वो तो हजूर नहीं दाखिल होना है सबसे पहले जन्नत में, तो वो उनकी सवारी की निस्बत की वजह से पहले अंदर एक किस्म से दाखिल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जन्नती वो हैं, पहले जन्नती सिर्फ नबी पाक हैं। पहले नबी पाक जन्नत में दाखिल होंगे, फिर बाकी तमाम अम्बिया जन्नत में दाखिल होंगे, फिर हजूर की उम्मत दाखिल होगी, फिर बाकी अम्बिया की उम्मतें दाखिल होंगी जो ईमान वाली होंगी। चेक करो कितनी देर हो गई है इसको। अगली वीडियो में आते हैं।